Welcome to Anka English, right? So, we shall study today the present continuous versus present simple. As such, we know what is present continuous in my last class also. I was telling you that present continuous action is ongoing, meaning thereby the character. The character of present continuous action. It is ongoing, and by the time of speaking, it is incomplete, and also it is temporary. It will complete soon from the present time. So let us again understand what is present continuous action in general grammar. I don't follow general grammar. We should follow what is practical, what our mind thinks. Understand? So you see, present continuous action is such an action that began in the past from the time of present. And when we see here that it is continuing, meaning thereby the action started in the past, continuing in the present, not at the present, in the present. ड्यूरेशन के बारे में बोल रहा हूं. And it will complete in the future somewhere. कहीं ना कहीं ये फ्यूचर में समाप्त होने वाला है. तो हम जब इस पॉइंट पर देखा, when we see particularly on this point, we see that an action is continuing, started from the past and continuing in the present and to be completed in the future. ये हम मान के चलते हैं. तो in general grammar, it is written that an action in progress now, because what is happening at the time of speaking is evident. That is why normally you should not use any adverb of time. This is structural grammar. We have been taught that in our school level. बस ठीक है, उस तक ठीक है. लेकिन when we come for writing, whether you are reading in class 7th or 8th or 6th, doesn't matter. But when we come for writing, this structural part will not work at for you. Why? Because every time whenever we see a sentence, present continuous is always connected with a time adverb. किसी गुरु के साथ तो हमको चलना है, बिना गुरु के तो कुछ भी नहीं होगा. और ये एस्पेक्ट है, गुरु कौन है बताया था, ये जो टाइम डिटरमिनर्स. तो चलो टाइम डिटरमिनर्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या क्या आता है. सो यू सी नाउ एट प्रेजेंट at this moment still today this morning month year etc. always. देखो in the present भी और एक, यानी हम लोग क्या करते हैं, what we are practically doing, that either we take a point of time in the present or a duration of time, right? So you see, so these are the time determiners, these are the grammar gurus, time gurus, right? Time markers, right? Whereby we can justify the sentence.
सेंटेंस को हम जस्टिफाई कर पाएंगे। करेक्टिंग द एरर, राइट, करेक्टिंग द एरर में क्या होता है, कभी कभी एडवर्ब ऑफ टाइम को चेंज कर देते हैं। पिछले क्लास में भी मैंने ये बताया था, राइट। तो एडवर्ब ऑफ टाइम को चेंज कर दे तो लोगों के माने स्टूडेंट्स गड़बड़ी करते हैं। किसको चेंज करें, या टाइम डिटर्मिनर या एस्पेक्ट। सो ये डिफिकल्ट आता है। तो देखो, हमको ये समझ लेना चाहिए, वी शुड प्रॉपरली अंडरस्टैंड हाउ शुड यू यूज टाइम डिटर्मिनर्स, एंड टाइम डिटर्मिनर्स रेगुलेट्स द टेंस एस्पेक्ट फॉर्म। Right from the first class I have been saying this. What is that? That all the tenses are not used the same time, right? And time adverb controls the verb aspects. इसको हमें मान के चलना है। तो देखो, ये क्या क्या मैंने बोला ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस कौन माने किस किस जगह पे हम यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इट एक्सप्रेसेस, इट एक्सप्रेसेस a deviation of a temporary deviation of habit or a repeated action. Right? Next, number 2, a temporary state. Number 3, for irregular irregular intervals, right? Irregular intervals, right? तो देखो, these are the 3 phases where present continuous is used with time determinants. As such, I repeat you that very rare cases we use present continuous tense without adverb of time. Whenever suppose you are asked a question, what are you doing? I am doing my homework. That's all. Because the question itself expresses the present time. That's why we need not use any present adverb of time. But apart from such cases, whenever present continuous is used, always we use time adverbs, right? So let us understand that from the examples. Okay, you see, Priyanka usually gets up at 5 a.m. but as her exam is over, she is
getting up at 8 a.m. now a days. Okay, you see, try to understand. Priyanka usually gets up. You see, frequent adverb here we have used here, and that's why this becomes V1. पहला वाला सेंटेंस क्या बोल रहा है? ये कल भी जो रहा था, परसों और आगे भी, पिछले भी हुआ था, आगे भी होगा, राइट? तो ये V1 हमने दे रखे, प्रेजेंट सिंपल, एक्शन फ्रीक्वेंट एंड परमानेंट नेचर की। लेकिन यहां का नेचर देखो, शी इज गेटिंग अप, मीनिंग दैट बाय इट डजंट फोकस at the present time, at the moment, doesn't focus it, right? But you see, her exam is over, she is getting up at 8 o'clock nowadays. You see, this is the time adverb that determines your aspect form. Understand? So she is getting up, ये क्या हुआ? V4 हो गया। वर्ब अगर V4 हो गया तो हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा? बी का। प्रेजेंट में इज एमआर है और सी सिंगुलर इज हो गया, तो इज प्लस VING। हमको कोई रटने की जरूरत नहीं, बस समझना ही चाहिए। अंडरस्टैंड, राइट? तो सेकंड चलो, सेंटेंस चलो। माई ब्रदर is staying in Cuttack nowadays or these days। ध्यान दो, माई ब्रदर इज स्टेइंग, ये भी हो गया ना V4। क्यों हुआ भाई? ये जो एक्सप्रेस करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेचर क्या है? टेम्पररी, ऑनगोइंग, इनकम्प्लीट। ध्यान दो, ये सब कंप्लीमेंटरी है, किसी को भी जोड़ दो आ जाएगा। वो जो नेचर है, हम जब डील करते हैं किसी के साथ भी, हम जब डील करते हैं क्या करते हैं, उसका नेचर क्या है पहले हम पता कर लेते हैं, उसके बाद उसके साथ मजाक करते या सीरियस होते, कुछ भी करते हैं। सो वी फर्स्ट सी हाउ अडेप्टेबल द पर्सनालिटी इज। सो हमको ये भी यहां भी देखना है। देखो, माई ब्रदर इज स्टेइंग, मीनिंग दैट बाय माई ब्रदर्स नेटिव प्लेस इज नॉट कटक, ही इज टेम्परली स्टेइंग देयर दीज डेज। अब रह रहा है, देखो टाइमलाइन को चलो, ये अब रह रहा है, प्रेजेंट में जब देखा गया तो अभी है कटक में, राइट? पिछले किसी साल से या पिछले महीने से या पास से। लेकिन ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में डाला गया, यानी किसी ना किसी दिन ये छोड़ देंगे कटक, तो इसका टेम्पररी स्टेट हो गया। सीधी सी बात। तो हम लोग जब माइंड में रहते ना, देखो ये माइंड का गेम है ना। मेरा भाई कटक में पढ़ रहा है तो रुक तो नहीं जाएगा ना। मेरा दीदी अभी लंदन में है, शी इज इन लंदन नाउ। क्यों ना? क्योंकि वो परमानेंटली नहीं गए, वो नौकरी करने के लिए गए हैं, नौकरी खत्म होने के बाद वो रिटर्न हो जाएंगे, तो ये इनका परमानेंट स्टेट नहीं है। अंडरस्टैंड? देखो, जो माइंड में है उसको हम लाते हैं, बस एस्पेक्ट में लाते हैं। हो गया? और देखो दूसरा वाला मैं बताता हूं। माई मदर is knitting a sweater for me
these days। देखो these days है ना, is knitting, कोई काम हो रहा है, रुक रुक के हो रहा है, राइट, इंटरमिटेंट इंटरवल्स, राइट, लेकिन चल रहा है। देखो अगर कोई तुम्हें बाहर में बोले तुम्हारा क्या चल रहा है, हमारा ग्रामर चल रहा है, अभी तो तुम रास्ते पर हो, हाँ अभी तो रास्ते पर है, लेकिन ये चल रहा है, रुक रुक के चल रहा है। इंटरमिटेंट इंटरवल्स ऑन और इरेगुलर इंटरवल्स, नॉट रेगुलर। आज 7 बेले है तो काली 3 बेले है तो बस माँ मत माँ मो स्वेटर बुनुंट गोटे रुटीन ना, राइट, केतले समय पाइले 8टा अधे 9टा बेलू धर दौरान बा केतले 3टा बेलू फ्री शोक उठला पर घंटे बुणुचंती बा संध्या बेले फ्री रोचंती बुणुचंती। तो कौनसी नियमित अनियमित व्यवधान रे कौनसी कार्य चालू रही थिले, रिपीटेड एक्शन सबुठी रोची कि नहीं, बस अनियमित व्यवधान रे, अनियमित इंटरमिटेंट इंटरवल्स, इरेगुलर इंटरवल्स, अनियमित व्यवधान रे कौनसी कार्य पुनः पुनः चालू रोहुथिले, आमे ताको प्रेजेंट कंटिन्यूअस सहित एडवर्ब ऑफ टाइम देले। देखो पहले एमती गोटे जगह मते देखा कोठी प्रेजेंट कंटिन्यूअस होउची एवं एडवर्ब ऑफ टाइम नाही, किंतु स्ट्रक्चरल रे आमे कोन पढिले, स्ट्रक्चरल रे आमे पढिले जे जे बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इज एविडेंट, तथ्य भित्तिक सामने रे मैं देखु जे यू डू नॉट नीड टू adjoin any adverb of time और enjoin any adverb of time, लेकिन प्रैक्टिकल में वो होता नहीं। प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल में कोई भी कार्य अभी नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो टेम्पररी पीरियड के लिए, राइट। कभी कभी तो ये कार्य होता है ऐसा कि अभी नहीं हो रहा है, फिर भी हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। Our grammar classes are, we are taking our grammar classes these days, अभी नहीं हो रहा है। My mother is knitting a sweater for me these days, अभी नहीं हो रहा है, इरेगुलर। लेकिन स्ट्रक्चरल में क्या कह गया, बस स्ट्रक्चरल में हम बोलते हैं देखो इस टाइम पे इस पॉइंट पर हम देखते हैं काम चल रहा है। प्रैक्टिकल में देखो थोड़ा और भी देखो आगे क्या होता है। देखो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक फ्रीक्वेंसी एडवर्ब डाल देते हैं यहाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल प्रेजेंट का एक फ्रीक्वेंसी एडवर्ब हम यहाँ डाल देते हैं। देखो मीनिंग क्या होता है, यू आर ऑलवेज कमिंग लेट in the class, ध्यान दो, जैसे you are always coming late in the class, ये जो always आ गया और ये V4 दिया गया है, एक्चुअली क्या फ्रीक्वेंसी एडवर्ब के साथ कौन से वाला फॉर्म आना चाहिए, नो V1, सिंपल प्रेजेंट बोलो मत, वो ग्रामर टर्म V1 आना चाहिए, प्रैक्टिकल हो जाओ, राइट, V1। लेकिन हमने क्या किया, V4 किया। क्यों किया, क्योंकि ये जो ऑलवेज है ना, तो यू आर ऑलवेज कमिंग इन द, यू आर ऑलवेज कमिंग लेट इन द क्लास, क्लास को हमेशा। लेकिन ये जो हमेशा, ये हमेशा नहीं होता है, ये होता है डिसअप्रूवल ऑफ द स्पीकर। तुम 1-2 बार जरूर आए हुए हो, है ना, अप्रूवल, राइट। लेकिन जो बोल रहा है वो थोड़ा गुस्से में बोल रहा है, यानी तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए। डिसअप्रूवल, तुम्हारा जो एंट्री रहा है ये मैं डिसअप्रूव करता हूं इसको, राइट, मैं चाहता नहीं कि तुम लेट हो। तो देखो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब डिसअप्रूवल। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया तो अप्रूवल, आई हैव ऑलवेज फाउंड हिम हेल्पफुल। अब तक मैंने जो ऑब्जर्व किया तो उसे हेल्पफुल ही पाया। सो ये अप्रूवल है और ये ट्रस्ट। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में
डिसअप्रूवल देते हैं। वही फ्रीक्वेंसी एडवर्ब अगर प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया तो ट्रस्ट, वही फ्रीक्वेंसी एडवर्ब अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में मिल गया तो ये डिसअप्रूवल का संकेत दे रहा है। राइट, यू आर ऑलवेज कमिंग लेट इन द क्लास, you are always disturbing in the class, even though once or twice you have disturbed, but still it is a case of disapproval. Your teacher's intention is that you should not have done like this, right? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बोल रहे हैं। Okay, understand? These are the 4 cases that we have practically read. Now you come for certain examples. So now it is your turn to speak, and with so I should see whether you have understood it not and where you did not understand, right? So if I ask you, yes, have you material? Yes, you can take this now, right? You see, ये मेरा material है, right? ऐसे use present simple और continuous, दोनों दिया गया है। The buses usually run along the street, but today they not run because it is under repair. You see, run is in the bracket and not run is also in the bracket. Again, I read it. Buses usually run along the street, but today they not run because it is under repair. So what should you answer? How should you answer it? Buses usually run along the street, but today they are not running because it is under repair. Thank you. The buses usually, it is a frequency adverb. इसको देख के तुम्हें क्या क्या V1 दिया, रन अलोंग द स्ट्रीट, बट टुडे दे आर नॉट रनिंग। ये क्या हुआ? डेविएशन ऑफ टेम्परली डेविएटेड एक्शन, राइट? ये तो चल रहा था, वो हैबिट से थोड़ा हट गया और रिपीटेड एक्शन से थोड़ा हट गया। मीनिंग दे भाई देखो मुझे तुमरा आउट एग्जांपल कहूची, आई एम नॉर्मली आई टेक टी बट टुडे आई एम टेकिंग कॉफी। सो दिस इज a deviated habit, right? For a temporary period, है ना? तो देखो, Vikas passed the post office on his way to work every day. Vikas passes the post office on his way to work. How do you know? Every day is the time dated. Yes, every day is the present time adverb, right? So वो frequency बताता है। तो Vikas passes the post office on his way to work every day. Next, Tanmaya rarely carry an umbrella, but he carry one now because it's raining. Tanmaya rarely carries an umbrella. Rarely carries an umbrella, yes. But he is carrying one now because it is raining. Bas he is carrying now. Rarely carries an umbrella. Meaning thereby, कभी-कभी वो लेता है, बस पकड़ता है, umbrella पकड़ता है, लेकिन अभी बारिश हो रहा है, अभी पकड़ के चल रहा है। तो बट ही इज कैरिंग वन नाउ बिकॉज इट्स रेनिंग। ओके, सो व्हाट यू जनरली डू फॉर अ लिविंग? What do you generally do for a living? दिमाग चलाओ, मेंटस खाओ, दिमाग का बत्ती जलाओ तो समझ में आएगा। ओके, व्हाट यू जनरली डू फॉर अ लिविंग? What do you generally यस, अभी मेंटस आया do for a living? दिमाग में। व्हाट डू यू जनरली डू इंट्रोगेटिव फॉर्म है ना, तो क्या होगा? What do you हाँ, इन्वर्सन फॉर्म होगा। तो डू हुआ ना, डू का इन्वर्सन फॉर्म। जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या करते हैं? वर्ब के डू इज यूज इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। या वर्ब क्या है? डू, और ऑक्सिलरी वर्ब भी डू। तो व्हाट डू यू डू? तो देखो ये जनरली, लेकिन हम अगर बोले व्हाट आर यू डूइंग एट द मोमेंट, तो हम प्रेजेंट कंटेंस में लाएंगे, क्योंकि एट द मोमेंट इज ए टाइम of the time determiner and which expresses point of time now. That is why we can say what are you doing at the moment, but what you generally do, what do you generally do for a living? बुझ पड़छो? हाँ, generally is the frequency adverb. Next come, तो you enjoy your English class today? Are you enjoying your English class today? yes, point of time, right? अंडरस्टैंड? किसी असुविधा होची, गड़बड़ी होची? हाँ, आर यू? तो देखो कम्युनिकेटिव
पब्लिक स्पीकिंग में ये दिमाग बहुत तेज से चलना चाहिए। तो अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, बोलना प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। सिर्फ लिखने की, सिर्फ ग्रामर सीखने की नहीं, हमको बोलना भी है। अगर किसी भाषा हम सीखते हैं तो तब तक सीखते हैं जब तक बोल नहीं पाते। इंग्लिश इज सच ए फनी सब्जेक्ट, वी इंडियन स्टूडेंट्स ओनली ट्राई हार्ड टू राइट बट नेवर वांट टू स्पीक। इसका एक कारण भी यह है, जो इंग्लिश टीचर्स वो हिंदी में पढ़ाते हैं। जब जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरा जो दूसरा वीडियोस है वो सब इंग्लिश में है, लेकिन मैंने देखा कि हिंदी में जल्दी पकड़ते हैं तो हम हिंदी बोलने लगे। लेकिन अगर इंग्लिश में होगा तो सही होगा, क्योंकि इंग्लिश सुनेंगे, इंग्लिश में समझेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में सोचेंगे, राइट। लेकिन वो टाइम आया नहीं, इसलिए मैं हिंदी बोल रहा हूं, राइट। तो देखो, तो वी नियरली ऑलवेज स्पेंड आवर हॉलीडेज एट द सी साइड, बट दिस ईयर वी आर गोइंग टू ए हिल टॉप। We nearly always spend our holidays at the seaside, but this year we are going to Hilltop. बस, तो स्पेंड सिंपल प्रेजेंट में दिया गया है, ब्रैकेट में है ऑलवेज फ्रीक्वेंसी एडवर्ब, सो वी नियरली स्पेंड आवर हॉलीडेज एट द सी साइड। बाकी जो है इसमें बिल्कुल दिया गया है, वी आर, तो दिस ईयर प्रेजेंट एडवर्ब ऑफ टाइम एंड वी आर गोइंग टू ए हिल टॉप, राइट। दिस ईयर एन इनकम्प्लीट एक्शन, मैंने जब सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट में डिस्टिंक्शन में बताया था, मैंने बोला था फोर्थ वन इज इनकम्प्लीट एक्शन। वी कैनॉट से, यू कैनॉट यूज ए पास्ट एक्शन फॉर एन इनकम्प्लीट एक्शन। मैं तुम्हें रिमाइंड कर देता हूं, राइट। तो देखो, यू वॉश योर हैंड्स बिफोर एवरी मील। Do you wash your hands before every Yes, meal? yes. It is a habit, right? Do you wash your hands before every meal? Right. My mother generally begin cooking at 11 o'clock, but today she came home early and cook now, although it's only 10:30. इसमें verb दो दिया गया है, begin में ब्रैकेट है और cook में ब्रैकेट है। तो अगेन मैं पढ़ लेता हूं। तो my mother generally begin cooking at 11, क्या होगा? My mother generally begins cooking. Yes, my mother generally begins. Why? Third person singular number, verb में s आएगा, बस cooking at 11. But today she came home early and cook now. Is cooking now. Is cooking now. Today is an incomplete action, right? Continuous, ongoing. So today she came home early and is cooking now, although it's only 10:30. Understand? तो नॉर्मली 11 रे से रोषेई करते, किंतु आज जल्दी पळै आसले 10टा आधुरु आरंभ कर देछंती। व्हाट डू यू एट दिस मोमेंट? What are you doing at this moment? यस, आ गया ना, व्हाट आर यू डूइंग एट दिस मोमेंट? इफ यू नॉट डू एनीथिंग प्लीज हेल्प मी। If you are not doing anything, please help me. यस, इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, इफ यू डोंट डू एनीथिंग, बहुत ही सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इफ यू डोंट डू एनीथिंग प्लीज हेल्प मी। इफ यू डोंट डू एनीथिंग माने, देखो पहला वाला सेंटेंस क्या है, व्हाट आर यू डूइंग एट दिस मोमेंट, कौन करूच, जदि किछि करूनो बोले मते टिके सहाय्य करो, जदि किछि करूनो ताले मते सहाय्य करो, ताले जो टाइम टा कोउची कोनटा एट प्रेजेंट। तो इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग ना, इफ यू डोंट डू एनीथिंग, इफ यू डोंट डू एनीथिंग ले कोन हो ना, एई समय रे केबे किछि तमे करो हला, बस इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग Please help me. बस प्लीज हेल्प मी। ओके, तो नम्रता who study medicine at present hopes to go abroad after graduating. Namrata, who is studying medicine at present, hopes to go abroad after graduation. Yes, Namrata who is studying medicine at present hopes to go abroad after graduating. I am sorry you can't see Punyamai. She sleeps still. She usually wake much earlier. I'm sorry you can't see Punyamai. She is sleeping still. She usually wakes much earlier. It's wrong. I am sorry you cannot see Punyamai. यहाँ तक तो ठीक है, कुछ नहीं, लेकिन देखो she sleeps still. She is Still, देखो still is a pre-verb adverb. तो कहां आएगा still का पोजीशन कहां है? She is still sleeping, not sleeping still. देखो पोस्ट वर्ब एडवर्ब
प्री वर्ब एडवर्ब, दो तरह के एडवर्ब होता है, राइट। देखो लेटली है ना, राइट, ये ऑलरेडी, ये सब पोस्ट वर्ब एडवर्ब्स, राइट। येट, ये सब पोस्ट वर्ब, आई हैव नॉट डन माई वर्क येट, ये सब पोस्ट वर्ब एडवर्ब। प्री वर्ब एडवर्ब, राइट, स्टिल। तो शी इज स्टिल स्लीपिंग, शी यूजुअली wakes much earlier, ओके ओके, ठीक अच्छे, यहां तक हम रखेंगे, ओके। बाकी सब तुम करके आओ, मैं करेक्शन करूंगा, ओके। तो स्टेटिव वर्ब फिर से कल तो होगा ना, कल फिर से होगा, ओके। कल स्टेटिव वर्ब के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस का डिफरेंस बताएंगे, और हम जो सेंटेंस लाएंगे उसी में एक स्टेटिव वर्ब होगा, कारण के साथ तुम बोलोगे, और एक प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, ओके। थैंक यू।